धन माल खंभ वे कांदड़े जे लहा कि ना सामी तोल तन जड़ाई अपना लहा सो सज्जन टोल सज्जन सच्चा पातशाह शिरशाहां दे शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाह सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद। मीत हमारे साजना राखे गोविंद निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद। रहा सगल मनोरथ प्राप्त किया बेटे गुरुदेवा। जय जयकार जगत मह सफल जाकी सेवा। ऊंच अपार अगनत है सब जी जिस हाथ नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरा साथ। ऊंच अपार अगनत है सब जी जिस हाथ नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरा साथ। ऊंच अपार अगनत हर सब जी जिस हाथ नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरा साथ। वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह। ऊच अपार अगणत हार सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। इस पावन शब्द दी विचार सिंह साहब साबका जथेदार श्री अकाल तख्त ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਗਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਰ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜਾ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਜੋ ਸੁਣਤੇ ਹਰ ਕਥਾ, ਪੂਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਮੱਥਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਹੁਣ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਜੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਪਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਵੇਖਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਰਪਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਦਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੱਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਪੇਚ ਢਿੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਦਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੜੇ ਗਿਰੀਵਾਣ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
सानू सोझी मिलेगी कि असीं किवें संसार विच विचरना है ते किवें इस मनुखा जन्म दे मिले हुए टारगेट नूं भी पूरा करना है। ये सतगुरु समर्थ हन साध संगत, होर कोई जगह है नहीं। क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह जी ने ये फैसला कर दिता कि प्रभु परमात्मा के नाम तो बिना ये मनुखा जन्म सफला नहीं हो सकता, प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती, आत्मा का परमात्मा नाल समेल नहीं हो सकता। ये सतगुरु पातशाह जी ने सानू समझा दिता। ते सतगुरु जी ने यह भी सानू सोझी दिते कि परमात्मा का नाम किवें ते कित्थों प्राप्त हो सकता है। जे हले भी असी भुलेखे विच रहीए, प्रतख रूप विच भी, गुरबाणी दे शब्द दे राहीं भी, एक बार नहीं बार बार सानू महाराज ने समझाया कि भाई प्रभु का नाम प्राप्त करन दा तरीका की है, किवें तुसी उस प्रभु नाम नूं प्राप्त कर सकते हो। ते जदों प्राप्त कर लिया ते फिर उहनूं जप किवें सकदे हो। इन्नी प्राप्ति तो बाद भी जे असीं हले किसी भुलेखे विच रहीए कि कोई व्यक्ति विशेष सानू नाम दे देवेगा, अपने हत्थां दा आकार बना के समझाउण दा यतन करेगा कि इत्थे जे करके नाम हैगा, जां केवल कंन विच नाम देना चाहेगा, तो साध संगत साडी अपनी बेसमझी होवेगी। क्योंकि सतगुरु पातशाह जी ने सानू समझा दिता, सतसंगति संग हर धन लभीऐ, होर थै होर उपाय हर तन कितै ना पाई। कहते भाई इको एक हट है सतसंगत का, जिथों ये प्रभु का परमात्मा का नाम मिल सकता है। कहते होर थां मर, कहते होर थै होर थां तो, होर ता उपाय ते होर किसी ढंग दे नाल हर तन किते ना पाई, कहते पाई नहीं लभना। फिर सतगुरु पातशाह जी ने कृपा की साडे ते, कलगीधर महाराज ने होर भी सौखा तरीका, सतगुरु पातशाह जी ने महान कृपा की कलगीधर महाराज ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने 5 प्यारे साजे, 5 दे सिर वड्डे, फिर उन्होंने अमृत की शक्ति नाल, अपनी शक्ति नाल उन्होंने सरजीत किया, 5 बाणियां पढ़ियां, अमृत तैयार किया, उन्होंने छकाया। फिर सिख संगतां दे सन्मुख खड़ियां करके कहा कि ये साडे प्यारे हन 5 ही, 5 प्यारे। उस दिन तो पंथ दे विच 5 प्यारे प्रचलित हो गए। ते फिर उन्हां 5 प्यारियां ने अमृत बलाखियां नूं अमृत छकाया। ते सब तो पहला अमृत छकन वाले कौन सन भाई 5 प्यारियां कोल? धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह आप, उन्होंने आप भी रासन लाया कि हुण मैनू अमृत दिओ। उन्होंने अमृत छकिया ते फिर सानू तमाम गुरु के सिखां नूं हुक्म कर दिता है कि गुरु का खालसा इन्हां 5 प्यारियां तो अमृत छक के गुरु घर विच दाखला लै लवे, गुरु घर दे स्कूल विच दाखला लै लवे। ते कोई बंधन नहीं, कोई जात दा, कोई गोत दा, कोई अमीर दा, गरीब दा, इस्त्री दा, मर्द दा, कोई भिन्न भेद नहीं। कोई भी आके 5 प्यारियां तो अमृत छके। ते जिथे धन गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच 5 प्यारे संपूर्ण 5 बाणियां पढ़ के खंडे बाटे का अमृत छका देन, साध संगत वो फिर गुरु का पुत्र बन जाए, गुरु कलगीधर पातशाह का पुत्र खालसा बन जाता। ते फिर वो नाम दिंदे ने, नाम जिहड़े नाम नूं जुगा जुगंतरां तो वड्डे वड्डे ऋषि मुनि देवी देवते लभदे रहे ना, ते वो परमात्मा का नाम बख्श दिंदे ने 5 प्यारे कि भाई तुसी अज तो आ गुरमंत्र जपना है। वाहिगुरु गुरमंत्र है,
जप होमै खोई। ये वाहिगुरू का सिमरन करना है। तुसीं साध संगत जी, जदों असीं धन गुरु नानक साहब तो लैके दसम पातशाह पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक इतिहास नूं नज़र मारदे हैं ना, तो मुढ़ तो लैके ही जिवें असीं कोई मकान बनाउणा होवे ना, कोई बिल्डिंग बनाउणी होवे, घर बनाउणा होवे, तां उहदा नक्शा बना लैंदे आ, पर नीआं रख के उहदी उसारी शुरू करदे आ। ते जिन्हें नक्शा बनाया, जिहड़ा घर दा मालक है, उहनूं पता है कि मैं इत्थे इहदा बूहा रखना है, इत्थे इहदियां मैं रोशनदान रखने ने, इत्थे मैं बनेरा रखना है, इस तरह का मैं इहनूं सुंदर बनाउणा ते इहो जी दिख देनी है मैं। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने इस जगत में आके जदों गुरबाणी की रचना आरंभ की ते सतगुरु पातशाह आप ते जानी जान सन, क्योंकि आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। सतगुरु पातशाह जी तो कोई भुल है नहीं सी। उन्होंने बाणी रचना शुरू की, पर उन्होंने पता सी कि ये बाणी गुरु है। असी ते अकाल पुरख वालों आई रचना नूं सिर्फ सिरजना है, उन्होंने अखरी रूप देना। जैसी मैं आवे खसम की बाणी, जिवें खसम की मालक की बाणी आवेगी असी लिखना, पर ये गुरु है बाणी। इस करके जो जो गुरबाणी लिखी, कलगीधर पातशाह जी ने गुरसिखां नूं अमृत छका के खालसा साज के, ते जेड़े जेड़े बचन गुरबाणी दे विच आए, उन्हां दे उपर खालसे पंथ नूं केंद्रित करने वास्ते सतगुरु पातशाह जी ने ये मर्यादा बनाई, ढंग बनाया कि भाई पंजां प्यारियां तो अमृत छक के करना की है। तो उहदे विचों जो पहले पातशाह जी ने जिन्नी नाम ध्याया, गए मसकत घाल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। फिर सतगुरु पातशाह जी ने गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। जिथे जिथे भी सतगुरु पातशाह जी ने इस गुरबाणी का साध संगत तारा करदियां करदियां, फिर धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भड़के उठ हर नाम ध्यावै। ते फिर सतगुरु पातशाह जी ने गुरबाणी विच उठत बैठत सोवत ध्याईऐ, मार्ग चलत हरे हर गाईऐ। ये जिहड़ा पैगाम मिलदा हुंदा सी ना, ते सतगुरु पातशाह जी ने साडे ते रहमत कीती, किरपा कीती। गुरबाणी की है भाई? गुरबाणी मीठी अमृत धार, जिन पीती तिस मोख द्वार। सतगुरु पातशाह जी ने अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होए परमगत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जी। की क्या बाणी नूं भाई? अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जो। सतगुरु है बाणी। तो फिर कहता बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। क्योंकि गुरबाणी सानू रोज का मार्ग दर्शक दिंदी आ रही सी। ते सतगुरु पातशाह जी दे पंज प्यारियां ने फिर कह दिता कि भाई आ वाहिगुरू मंत्र तुसी रोजाना अमृत वेले उठ के इहदा अभ्यास करना है, इहदा उच्चारण करना है, इस वाहिगुरू मंत्र नाल जुड़ना है, इहदे विच उतर जाना है। ते भाई गुरबाणी ते सिमरन, नाम सिमरन, इहदा सुमेल भी कीता सतगुरु ने कि भुलेखा ही ना रह जाए गुरु के सिखां विच कि गुरबाणी कोई होर चीज़ है, सिमरन कोई होर चीज़। क्योंकि गुरु का सिख हर थां ते बैठा चलदा फिरदा कल्लियां विच बहुतियां विच सिमरन कर सकदा। गुरबाणी पढ़न वास्ते उन्होंने कांत चाहिदी है, सतगुरु पातशाह जी का गुटका चाहिदा है, पोथियां चाहिदियां। जे बाणी कंठ भी है तां भी उन्होंने कांत चाहिदी। सिर्फ इन्ना क फर्क रखिया, पर जिथे सतगुरु पातशाह जी ने इहदा सिद्धांत रचिया उथे एक लेस मात्र भी फर्क नहीं रहन दिता। पूरा थाट बनाया, पूरा वेखो एक समाना।
महाराज ने बाणी में लिख दिता। इस प्रपंच में साचे नाम की वडियाई मत को धरो को मानना। महाराज कहते भाई ये बाणी का जिक्र करना सी। गुरबाणी की है ये बाणी जो जियो जाना है तिस अंतर रवा हर नामा। कहते भाई जी ने जीवात्मा तो अपने हिरदे तो हीए तो इस बाणी नूं जान लिया तिस अंतर रवा हर नामा। वो परमात्मा का नाम सिमरन कहते उहदे हिरदे विच टिक जाएगा, समा जाएगा। इन्ने ही सतगुरु पातशाह जी ने समेलता बख्शी। तो फिर भाई जेड़े गुरु के सिख पंजा प्यारियां तो खंडे बाटे दा अमृत छक के त्यार बर त्यार होके रहत विच प्रपक्ता पंजा ककारां दी रहता धारण करके गुरु का खालसा सज जांदा है। तो वो भाई फिर गुरु के पुत्र पुत्रियां है, वो तो उन्होंने तो आनंद ही आनंद ने। सतगुरु पातशाह जी ने एडा सुखैन रस्ता सानू बख्श दिता कि आओ। सीधी आवाज मार के जो सतगुरु पातशाह जी ने कहा ना, आवो हो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी तो गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी, श्रोमणी बाणी। ते साध संगत जिवें दास बेनती कर रहा सी कि जिवें असीं घर दा नक्शा बनाउणे ना, 10 पातशाहियां ने ये उलीकिया हुआ प्रोग्राम कि गुरबाणी गुरु है। ये गुरु के सिखां नूं तमाम जगत जलंदे नूं दसना है। तो ये बाणी की सिरजना करके बहुत लंबा इतिहास है साध संगत। ते नाल नाल उम्र का भेद भिन्न भी कढ़ के जिस स्थान ते बैठे हाँ, कदे 8 साल की उम्र विच उस अकाल पुरख पार ब्रह्म की जोत 8 साल की उम्र में समा जाती है। तो फिर कोड़ियां के कोड़ मेट देंदे ने, रोगियां के दुख दूर कर देंदे ने, साध संगत अनेकों प्राणियां नूं तार देंदे ने। ते कदे 75 साल की उम्र में आके इस गुरियाई गद्दी नूं साम के फिर जगत जलंधर नूं तारन वास्ते बाणी की रचना करते हैं। इहदा भी भेद भिन्न कढ़िया। ते जिहड़ी आत्मक शक्ति सी, आत्मक जोत सी, जोत रूप हरे आप गुरु नानक कहायो, ताति अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो। जेडे इहदी व्याख्या भी सतगुरु ने अपने समय काल विच ही कर दिती। जदों धन गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह जी ने गुरु की अंश बंश तो गुरु की बाणी लिखी हुई पोथियां मंगवाइयां, तो अगों जवाब मिल गया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी, धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी तो लैके जिन्होंने गुरुआं ने यह बाणी रची अ उस ही गुरता गद्दी के उपर सुभाएमान ने गुरु कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज। ते जो गुरु ने तो आप ही बाणी रच लैन। सतगुरु पातशाह जी ने 25 सिंह भेजे सन अदब सत्कार नाल गुरबाणी दीयां पोथियां लैण वास्ते। ते जदों तलवंडी साबो गए वो सिख वापस उन्होंने दसिया महाराज आ जवाब दिता है। महाराज कहते कोई नहीं, गुरु नानक भला करेगा। तो सतगुरु पातशाह जी ने उत्थे 9 महीने 9 दिन रह के अपने कंठों सारी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी आप उचारी। धन शहीद भाई मणि सिंह जी इन्हों ने सारी बाणी अपने हथी सतगुरु पातशाह की कृपा नाल लिखी। अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी जिन्हों ने सारा साजो समान इकट्ठा किया, स्याही बनाई, कलमा घड़ियां कागज का प्रबंध किया और रोजाना करते। ते सवेर वेले ये बाणी उचारी जाती, लिखी जाती। ते शाम के समय सतगुरु पातशाह जी सारे सिखां नूं, गुरु के सिंघां नूं, खालसे नूं इस अगाध बोध बाणी दे अर्थ पढ़ा आप कथा करया करते। कितना आनंद होएगा साहब। जेड़े बाणी नूं उचारन वाले ने उही कथा करन वाले ने। तानों व्याख्या होगी, तानों सुनने वाले सन। साध संगत उत्थे आप सतगुरु पातशाह जी ने सारी बाणी रची। तांजे धन गुरु ग्रंथ साहब जी की इस बीड़ नूं दमदमे वाली बीड़ कहते हैं, दमदमी बीड़ कह देंगे। क्योंकि दमदमा साहब गुरु की काशी तख्त श्री दमदमा साहब ते बाणी उचारी सतगुरु ने सारी आप।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, तमाम सिख जगत नूं इस गुरबाणी नाल गुरु रूप दे विच जोड़ दिता। गुरु रूप दे विच आग्या भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिलवो चाहे खोज शब्द मैंने। कोई भुलेखा रह गया भाई? सतगुरु जी ने भुलेखा रहन ही नहीं दिता। तां भुलेखे कढ़ के सानू जुगो जुग टल धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने जोड़ दिता। ते अज भी वो भागां वालियां रूहां गुरु के प्यारे सिख गुरु की बाणी पढ़ पढ़ के आनंद लै रहे हैं, सतगुरु की बाणी विच जुड़ रहे ने। ते जिहड़े भाई अज दे शब्द विच सतगुरु पातशाह जी ने जो कृपा की है वो भी यही है, जिहड़े निंदक ने उन्होंने निंदा करी जानी, ते जिन्हां ने आनंद लैना है उन्होंने आनंद लै लैना है। ते सतगुरु कृपा करन, रहमत करन। आओ सतगुरु पातशाह जी की जो चल रही लड़ीवार गुरु की बाणी की कथा है, उहदे विच आपां सतगुरु पातशाह की वडियाई करनी है। इत्थे कोई विद्वता तो है नहीं भाई, जिन्ना मर्जी कोई विद्वान बन जावे, सियाणा बन जावे, चंगी विद्वता दे नाल जे शरधावान होवे तां चंगी व्याख्या ते कर सकदा है। पर साध संगत इस गुरु की बाणी की पूरी व्याख्या नहीं कोई कर सकता, क्योंकि है ही बाणी अगाध बोध। तेरे कमण कमण गुण कह के गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्णन ना सको। जिहदी महिमा वर्णन की ही नहीं जा सकती, उत्थे विद्वता की करूगी भाई? फिर दास ते विद्वान भी नहीं, सिर्फ संगत के दर्शन करने वास्ते, हाजरी भरन वास्ते बेनती करी दी है। प्रबंधक जन मन लेंदे ने, आप संगतां दे दर्शन हो जाते हैं। सो आओ सतगुरु पातशाह जी अज दे हुक्म विच बिलावल महला पंजवा बिलावल राग दे विच धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी कृपा कर रहे हैं। मीत हमारे साजना राखे गोबिंद। आप जी ने जो पिछले शब्दों की व्याख्या सरवण की है, साध संगत जी उथान का, क्योंकि संप्रदायी जथेबंदियां विच ये उथानका समझाई जाती है, ताकि शब्द उच्चारण का कारण भावें कि जो गुरबाणी हमेशा लई अगाध बोध सदा लई सानू सिक्ख्या देने वाली, सानू आनंद देने वाली, साडी कल्याणकारी है। पर फिर भी कोई कारण हुंदा है जिस दे कारण सतगुरु पातशाह जी ने बाणी उचारी। जदों सतगुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी, गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी के साहिबजादे दे जन्म होया, ये दास तो पहला भी ज्ञानी सिंघां तो आप जी ने ये उथानका जरूर सुनी होगी, क्योंकि ये 6 शब्द पहले इसे ही उथानका के अधीन हैं। तो गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी नूं पिरथी वर्गिया ने, होर निंदकां विरोधियां ने खत्म करने के बड़े यतन किए, शरीरक तौर पर छोटे हुंदियां तो ही लैके कदे दाई दे थणा नूं जहर लवा के, कदे सप छड्ड के, इत्यादिक बहुत सारे यतन किए गए। पर सतगुरु धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी भाई गुरदास जी नूं, बाबा बुढ़ा जी नूं, होर गुरु के सिख संगतां नूं तरवासा दिंदे कि गुरु के सिखो कोई चिंता ना करो, ये निंदक हुंदे आए ने, हुंदे रहणगे, पर निंदक अपना आप ही इस दुनिया चों खुआरी दा राह चुन के तुर जाणगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। भावें सानू अज वास्ते भी सिक्ख्या दित्ती जाए, आपां इहदी विचार करांगे, पर मुड़ विच सतगुरु पातशाह जी फरमाउंदे ने, मीत हमारे साजना। ये भाई गुरदास जी
हे भाई बुढ़ा साहब जी, तुसी किसी किस्म की चिंता ना करो। राखे गोबिंद उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने बालक गोबिंद हरगोबिंद राय नूं आप रखना कीता है, आप उहदी रखिया कीती है। अनक प्रकार दे जो यतन किए गए सन उन्हां सब नूं निष्फल करके साहिबजादे दी रखिया आप अकाल पुरख वाहिगुरु ने कीती है। ये उथानक है साध संगत जी, इहदे आधारत सतगुरु पंचम पातशाह जी ने यह शब्द उचारना किया है। पर सतगुरु पातशाह जी क्योंकि साखी प्रथाए साखी महापुरख बोलते सांझी सगल जहान है, ये सतगुरु की बाणी तो है ही अगाध बोध। भावें प्रथाए उथानता हुंदी है पर यह सदा वास्ते समुचे जगत जलंदे नूं सिक्ख्या देण वास्ते है। तो आपां नूं सिक्ख्या देण वास्ते धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी कृपा कर रहे हैं। मीत हमारे साजना राखे गोबिंद कि हे मेरे सज्जन गुरु के सिखो। इत्थे सज्जन कौन है? सज्जन सही नाल मैं चलदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दसन। सतगुरु पातशाह जी ने इत्थे सज्जना की व्याख्या की। सज्जन सच्चा पातशाहो सिर साहां दे साहो, जिस पास बैठिया सोही है सबड़ा दा विसा। कहते भाई सतगुरु पातशाह जी हे नाम जपन वाले सज्जनों, हे मित्रों, परमेश्वर की आराधना करने वाले गुरसिखो, राखे गोबिंद सतगुरु आप अकाल पुरख वाहिगुरु साडी रखिया करेगा हर थां ते। जिन्हें माता के गर्भ विच भी साडी रखिया की। प्रतपाल माता उधर राखै लगन देत न सेक, सोई स्वामी इहा राखै बूझ बुद्ध विवेक। कहते भाई विवेक विचार वाली बुद्धि ना सोच के देखी, जिन्हें उत्थे तेरी रखिया की है ना वो हर थां ते ही रखिया करन नूं समर्थ है और करेगा। निंदक मृतक होए गए, जेड़े भाई निंदक हुंदे ना, निंदा हुंदी की आ? किसी दे गुणां नूं अवगुण करके चितारना, किसी दी शोभा वडियाई ना सहारदे होए अकारण उसकी निंदा करना, उसदे उल्ट कारण बोलना, बिना कारण तो उसदे उल्ट बोलना, ये निंदा है। जे भाई कोई शराबी है उन्होंने शराबी कह देना ही निंदा नहीं, जे कोई चोर है उन्होंने चोर कह देना ही निंदा नहीं। पर जे कोई चंगा गुरसिख है उहदे विच शुभ गुण ने, सत संतोख दया धीरज खिमा विचार है, उहदे ते दूषण लाने ये निंदा है। तो निंदा अज दे काल दी तां नहीं, निंदा हुंदी आई। भगत कबीर दी बड़ी निंदा हुई तो जदों भगत जी नूं दस्सिया भगत जी तुहाडी बड़ी निंदा हो रही है, तो उन्होंने खुशी दे विच शब्द उचारिया, बड़े प्रसन्न होए। तो दस्सण वाले फिर बड़े हैरान होए, असीं दस्सिया भी तुहाडी निंदा हो रही है, तुहाडी बदनामी हो रही है, तो तुसीं खुश हो रहे हो। उन्होंने शब्द उचारिया, निंदो निंदो मोह को लोग निंदो, निंदा जन की खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। उन्होंने कह दिता कि भाई मेरे औगणा दे कपड़ियां नूं धोण वाले निंदक समर्थ ने, निंदा कर करके मेरे औगणा नूं धोणगे, धो लैण दो। सतगुरु पातशाह जी इत्थे भी कृपा कर रहे ने कि भाई निंदक मृतक होए गए। दो तरह की मौत, बड़े वड्डी लेवल ते बड़े पद्धर ते कोई प्रचार करे, तुसीं देखी जाओ, इहदा तां बहाना ही कुछ नहीं, ये एवें विखावा ही करता है, अंदर इहदे कुछ नहीं। पर जदों सतगुरु की कृपा दे नाल जय जयकार हो जाती है ना, तो वह निंदक वैसे ही मर जाते भी असीं तां होर कुछ सोचिया सी, होर हो ही कुछ होर गया। इत्थे ही महाराज कहते भी इन्हां निंदकां ने पिरथीए वर्गे ने सोचिया सी बई असीं दाई नूं दमड़े दिते ने, उन्हें अपने अस्त्रां नूं जहर ला के इस बालक नूं खत्म कर देना है, तो वेंदे जाओ कल नूं की बनदा है, इत्थे सोग पै जाएगा, साडे वाले पासे खुशियां होणगियां। पर जिवें जिवें समां बीतिया, धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह की जय जयकार हुई, तो फिर निंदक वैसे ही मर गए, जिउंदे ही मर गए। तो सतगुरु पातशाह जी वैसे भी कहते हैं कि भाई जिहड़े निंदक लोग ने वो निंदा विच ही अपना समा बर्बाद करके ऐसी मौत मरदे ने
कि ये संसार तो सब कुछ अपना समा भी बर्बाद, मनुखा जन्म भी बर्बाद करके चले जाते हैं। निंदक मृतक होए गए, तुम होए निचिंत। कहते तुसी निचिंत रहो, तुसी ना चिंता करो, बेफिक्र हो, क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह जी सिमरन करन वालियां नूं, बंदगी करन वालियां नूं, गुरसिੱਖੀ धारण करन वालियां ते जिहड़ियां तरकां हुंदियां ने ना गुरबाणी पढ़न वालियां नूं, मारे कहंदे भाई तुसीं बेफिक्र हो के सतगुरु पातशाही दा नाम सिमरन करो, गुरसिੱਖੀ च परपक्क रहो, दसां नौं दी किरत करो। जिहड़े निंदक ने वो आपे ही खज्जल खुआर होणगे, पर तुसीं ना फिक्र करो, तुसीं चिंता ना करो। सतगुरु पातशाह जी कहते भाई जो तुसी जपिया हुआ नाम, तुहाडी धारण की हुई सिੱਖੀ सफल होनी है, तो फिर निंदकां दा फिक्र काहदा भाई, उन्होंने लगे रहन दे इस पासे। सतगुरु पातशाह जी अगे फरमाउंदे ने, रहाओ विश्राम दे के कृपा कर रहे हैं। सगल मनोरथ प्रभ कीए पेटे गुरदेव। सतगुरु पातशाह जी फरमाउंदे ने, जिहड़े मनोरथ हुंदे आ मन दे संकल्प, जिहड़े मन विचों संकल्प पैदा होंदे ने, ते संकल्प किवें बनदा है? जिहड़ा भाई सिमरन विच लगा है, सिमरन विच ओहदी सुरती बिरती जुड़दी है, तो उहदे मन विचों संकल्प पैदा होवेगा कि मैनूं सतगुरु दे दर्शन होण, मैनूं गुरु की संगत विच बहन दा समा मिले, मैनूं गुरु के कीर्तन सुनन दा सुभाग प्राप्त हो जाए। उहदे संकल्प इहो जिहे पैदा होण। जिथे किते मन में शंका आवे, उत्थे उन्होंने होएगा कि मैनूं गुरु के सिखां दा मिलाप हो जाए, क्योंकि मन ने जो कुछ असीं साडे शरीर ने करना, उहदे विचों संकल्प पैदा होने ने। सतगुरु पातशाह जी फरमाउंदे ने, सगल मनोरथ प्रभ कीए, ते सारे मन दे संकल्पां दी संपूर्णता करन वाला आप अकाल पुरख वाहिगुरू है, भेटे गुरदेव। क्योंकि असीं सतगुरु पातशाह जी नूं परिपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी नूं प्राप्त कर लिया। असीं अपना तन मन भेंट कर दिता गुरु नूं। इस वास्ते हुण साडे जिहड़े मनोरथ ने, साडे जिहड़े संकल्प ने, वो सतगुरु पातशाह जी ने आप ही संपूर्ण करते हैं। उन्हां दी पूर्ति करन वास्ते आप समर्थ है। जय जयकार जगत महै। सतगुरु पातशाह जी इत्थे ये भी फरमाउंदे ने कि भाई जिहड़े प्रभु की भगती करते हैं ना, बंदगी करते हैं, जुगा जुगंतरां तो ये खेल परमात्मा का चलिया आया। उन्हां दीयां परखां भी होईयां, उन्हां नाल ईरखा भी होई, उन्हां दे जुल्म भी होए, पर अखीर नूं होया कि उन्हां दी जय जयकार होई। भाई गुरदास जी फरमाउंदे ने कि एक चमियारां दा लड़का, जिन्हां दे खानदान दा ये किरत सी कि मुर्दे पशु ढो ढो के उन्हां दा चम उतार के जुत्तियां बनाउणियां, जुत्तियां गंढणियां, गुजारा चलदा सी। पर कहंदे जदों एक बिरती परमात्मा दे नाम विच रंगी गई, फिर भगत भगत जग वज्जिया चौं चक्कां दे विच चमरेटा। फिर कहंदे वो सारी दुनिया दे विच भगत रविदास पैदा हो गए। ते वड्डे वड्डे राजे रहीश अपने आप नूं कहाउण वाले भगत जी दे चरनां ते आके नमस्कारां करन लग पए। भगती दा तेज इन्ना है। ते महाराज सच्चे पातशाह जी इत्थे फरमाउंदे ने, जय जयकार जगत महै। उन्हां दी जय जयकार संसार में हो जाती है, वो कोई रोक भी नहीं सकता। कोई चाहे कि मैं यदी वडियाई शोभा हुंदी रोक देवां, उहनूं कोई रोक नहीं सकता। भाई इस तरह भगत भाई गुरदास जी ने एक होर उदाहरण दी है कि जिहड़ा प्रहलाद भगत होए ना, इन्हां दा खानदान भी पिता पुरखी जो सुभाव सी वो भी कोई भगती वाला नहीं सी, बल्कि विपरीत सी, उल्ट सी। उन्हां उदाहरणां दित्तियां जिवें कहंदे कलरी धरती दे विच कोई वृक्ष पैदा नहीं हुंदा, कोई खेती नहीं हुंदी,
कोई फसल नहीं हुंदी, कोई फल बूटा नहीं हुंदा। उसे तरह भगत प्रहलाद का जन्म उस थां ते हो गया। कर हरनाक्ष दैंत दे कलर कवल भगत प्रहलाद, कहते कलरली धरती दे विच प्रहलाद पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि हरनाक्ष जिहड़ा सी वो दैंत सी, राजा भी सी ते करड़े सुभाअ दा भी सी, दुष्ट सी। ते भाई गुरदास जी फरमाउंदे ने कर हरनाक्ष दैंत दे कलर कवल भगत प्रहलाद, पढ़न पठाया पाठशाल, स्कूल दे विच पढ़न भेज दिता। राजे पांधे चित हुआ अहलाद, सवाल जवाब करके ना भी तू आ पढ़, वो कहे नहीं मैं परमात्मा का नाम जपना। कहते पट्टी लिख, पट्टी ते भी गोबिंद गोबिंद लिख दिता। मन विच हैरान हो गया, पांधा हैरान होया। सिमरा मन विच राम नाम, गावे शब्द अनाहत नाद। भाई गुरदास जी ने कमाल की, कहते भाई भावें कलरी धरती विच पैदा होया सी, पर ऐन अपने आनंद विच परमात्मा का नाम सिमरन करता रहा। भगत कारण सब चाटड़े, इत्थे चाटड़े चेले प्रहलाद दे नहीं, मदरसे दे विद्यार्थी जिहड़े सी उन्हां नूं कहा, जिहड़े मदरसे विच लाया गया ना पढ़न वास्ते भगत प्रहलाद नूं, उन्हां दे जिहड़े संगी क्लास फैलो सी, उन्हां दे हम जमाती सी, उन्हां सारिआं नूं चाटड़े कहा। क्योंकि वो सारिआं नूं ला लिया करे भी आओ भगती करिए, मिल के इकट्ठे होकर परमात्मा का नाम जपीए, तो सारिआं नूं भगती करन ला लिया करे। भगत करन सब चाटड़े, पांधे होए रहे बिस्माद। ते जिहड़े पांधे सी क्लासां लाउण वाले वो बड़े हैरान होए। ते एक पांधा जिहनूं हैडमास्टर कह लईए, जिहड़ा उन्हां दा मुखी पांधा सी, ते उहने फिर एक जुगती बनाई भी कल नूं राजा साडे ते ना खिज जाए, असीं इस असलीयत नूं हरनाक्ष दे कोल जाके दस दईए। राजे पास रुआया, दोखी दैंत वधाया वाद। राजे दे पास जाके दसिया कि तुहाडा पुत्तर पढ़दा नहीं, जो असीं कहने साडी मनदा नहीं, सुनदा नहीं, बल्कि सारे स्कूल दे बच्चे उन्होंने परमात्मा की भगती वाल नूं तुरे हुए ने, उन्होंने भी नहीं पढ़न दिंदा। दोखी दैंत वधाया वाद। इन्ना गुस्से होया, जल अग्नि विच घत्तिया, जलां डूबे गुर प्रसाद। फिर कहंदे चक के पानी च डोबण दा यतन किया भगत प्रहलाद नूं। कहंदे ऐसी अकाल पुरख की कृपा हुई, भाई गुरदास जी कहंदे नहीं डोब सकिया पानी। ते फिर कढ़ खड़ सद पुछया कौन सो तेरा है उस्ताद। फिर तलवार खिंच लई, कहंदा इधर आ तैनूं हुणे ही वढ देना, मैं दस तेरा कौन उस्ताद है। जे तू इन्हां पांधियां दे नहीं मनदा ते तैनूं ये वाहिगुरू दी, परमात्मा दी, गोबिंद दी, राम दी भगती करन दी जुगती कौन सिखाउंदा, वो तेरा उस्ताद कौन है। फिर थम पाड़ प्रगटिया नरसिंह रूप अनूप अनाद। कहते जो इत्थों तक गल पहुंच गई ना, फिर खड़ कढ़ ली, हुण ते कढ़ लई आ ते प्रहलाद ते वार होने वाला, ते मेरे भगत नूं इहने वढ देना। ते फिर नरसिंह दा रूप धार के आप परमात्मा पैदा हो गया। ते जो गल इत्थे तक होई, फिर मनमुख पकड़ पिछाड़िया। भाई गुरदास जी कहते फिर उन्होंने परमात्मा की भगती करने वाले की रखिया करनू आप सतगुरु पातशाह जी ने कृपा की, रहमत की, ते फिर उसका नाश किया, हरनाक्ष नूं मार दिता। ते फिर अखीर नूं की होया, जय जयकार करन बरमाद। ब्रह्मा तक कहते फिर भगत प्रहलाद की जय जयकार। सतगुरु पातशाह जी इत्थे फरमाउंदे ने जय जयकार जगत में, जेड़े भाई उन्हां दी शोभा जुग जुग होई कोई ना मेटन हारा। बाणी विच भी सतगुरु पातशाह जी फरमाउंदे ने कि भाई जेड़े परमात्मा दा नाम जपदे ना, उन्हां दी जुगा जुगां दे विच शोभा हो जाती है, कोई मिटनी भी चाहे तो नहीं मिट सकती। सतगुरु पातशाह जी की ऐसी कृपा की
ये प्रेरणा है गुरबाणी। गुरबाणी असी सिर्फ अज दे इस युग विच चुंच ज्ञानी बन गए। असी कहने बाणी सिद्धांत है, बाणी संविधान है, बाणी एक सिक्ख्यादायक ग्रंथ है, बाणी असूलों का संग्रह है। साध संगत जी ये लिपियां चोपड़ियां गल्लां सानू गुमराह कर दे। ये तो सब कुछ है ही, पर गुरबाणी गुरु है, गुरबाणी शक्ति है। सतगुर मेरा सार प्रतिपाला है, सतगुर मेरा मार जीवाला है। इहदे तो क्यों मन घरोने? गुरबाणी शक्ति है, गुरबाणी गाढ़े अंधेरे विच प्रकाश करने वाली है, गुरबाणी नूर है, गुरबाणी दरगाह तक साडी सहायता करने समर्थ है। सतगुरु पातशाह जी ने बाणी विच एक थां फरमाया, जे मार के गणे जाए न कोसा, हर का नाम उहां तक उहां संग तोसा, जे बैंडे में अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। फिर भी शंके कि गुरबाणी केवल सिद्धांत है? नहीं भाई, गुरबाणी गुरु है, गुरबाणी सर्व कला समर्थ है। जिंदी जदों तक देखो शरधा जिहड़ी है ना, शरधा साडा बेस है, साडा मुढ़ है, साडी बुनियाद है, साडी नींह आ। ते जे शरधा ही साडी टुट गई ना, ये शरधा तोड़न दे ढकवंज रचे जा रहे ने कि गुरबाणी सिद्धांत है, गुरबाणी असूल है। नहीं भाई, गुरबाणी सिद्धांत भी है, गुरबाणी असूल भी है, गुरबाणी शक्ति भी है, गुरबाणी समर्थ भी है, गुरबाणी गुरु भी है। ये हर गुरु के सिख नूं मन विच शरधा धार के गुरु दे सन्मुख असीं अरदासां करदे हां। अरदासां पूरीआं हुंदियां है, साडे मन नूं शांति मिलती है, ठंड पैंदी है। ते महाराज सच्चे पातशाह जी ने तो इत्थों तक कहा कि भाई जिहड़ी दवा दा किते इलाज नहीं ना, चिंता वर्गियां बीमारियां खत्म लै नहीं सकदियां मनुख दे मगरों, ते उहदे वास्ते सतगुरु पातशाह जी फरमाउंदे ने, तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। सारी चिंता मिटन नूं समर्थ है तुरकी बाणी। इस वास्ते जय जयकार जगत में सफल जाकी सेव। है कोई शंका भाई? धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे ने कि भाई उन्हां दी जगत दे विच जय जयकार हो जाती है, ते उन्हां दी सेवा कीती भी सफली हो जाती। सफली निसफल थोड़ो जानी है। जिहड़े गुरु के सिख 2:30 बजे आउंदे ने, अमृत वेले उठ के आउंदे ने, दरबार दी सेवा करते ने, कोई प्रकर्मां दे विच इशनान कराउंदे ने, कोई निशान साहब दे थड़ा साहब दा इशनान कराउंदा है, भी अपना इशनान सरोवर विच करदे ने। ये सेवा किते बिरथी जानी ना भाई। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। साध संगत जिहड़ा चित ला के श्रद्धा भावना दे नाल सेवा करेगा, साध सेवा कीती सफल है। जित सतगुर का मन मन्ने जां सतगुर का मन मन्निया तो पाप संभल भन्ने, सारे पाप दूर हो जाणगे जो सतगुरु नूं भागे। असीं सतगुरु पातशाह जी इत्थे किरपा कर रहे ने। जय जयकार जगत में ओदी भाई जय जयकार संसार विच होवेगी। सफल जाकी सेव, जिहदी सेवा कीती हुई इस थां ते सफली हो, ते ओदी सफली हो जानी है भाई। जिन्हें मन की एकाग्रता नाल, शरधा दे नाल, भावना दे नाल सेवा कीती, ओदी सेवा अवश्य सफली हो जानी है। ते ओदा जय जयकार केवल इत्थे ही नहीं, लोक परलोक विच जय जयकार पाउण नूं समर्थ ने सतगुरु। ऊंच अपार अगंत हर। कहते भाई सेवा किहदी कर रहे हैं, किहदी सेवा च हाजिर होए हैं, जस वडियाई शोभा किस दी सुन रहे हैं। हजूर फरमाउंदे ने ऊंच अपार अगंत हर। ओनू व्याकरण दे राही, ओनू उक्तियां जुगतियां दे राही वर्णन नहीं किया जा सकता। वो पारावार तुरैत है, अपार अगंत है, ओनू मिणिया तोलिया नहीं जा सकता। वो परमात्मा अगाध बोध है। सतगुरु पातशाह जी का एडा वड्डा परमात्मा का नाम है हरि परमेश्वर का, जिहड़ा सारे जीवां नूं हरे भरे करने वाला, हर जगह ते जो व्यापक है, जिहड़ा भाई कित्थे तोल लवांगे, जिथे साडी गमता ही नहीं, जिथे साडी पहुंच ही नहीं, वो तो उत्थे भी है।
क्योंकि परमात्मा दा नाम परमात्मा दा वासा जर्रे जर्रे दे विच व्यापक है, उतों तक साडी पहुँच नहीं। इस वास्ते ऊंच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ, सारे जी उन्हां दी पालना पोषना, उन्हां दी लैता, उन्हां दा रोजगार, उन्हां दे खाण पीण दा प्रबंध सारा उहदे हत्थ विच है। साडा तो छोटे जे परिवार दा प्रबंध असीं करना होवे ना, तो सारी जिंदगी असीं देशां विदेशां विच घुमदे हां, प्रबंध करते हैं, रज करने हैं, कमाई करते हैं, क्योंकि साडी ड्यूटी लगी कि इन्ना क परिवार है, इहनूं तुसीं पालना। गुरसिख नूं तां सानूं उहदी किरत करनी चाहिए, पर जो टारगेट नाल दिता है ना सतगुरु ने कि भाई चलदियां फिरदियां उठदियां बहिंदियां कमाई करदियां किरत करदियां काम करदियां परमात्मा दे नाम वाल अपनी बिरती सुरती मन जोड़ के रखना है। एक तरीका है, ढंग है, ऊठत बैठत सोवत ध्याई है, मार्ग चलत हरे हर गाई है, खेती वंज सब हुक्म है, हुक्मे मन वडियाई राम। व्यापार करो, वंज करो, खेती करो, पर कहते नाल उहदा हुक्म मन के रखियो परमात्मा दा भी सानू हुक्म की है। ते सतगुरु दा हुक्म है भाई भाई प्राप्त मानुख देहरिया गोबिंद मिलन की, यह तेरी बरिया हुक्म है तेन। इस वास्ते गुरु का सिख इस हुक्म नूं मन के चले तो सतगुरु की फिर रहमत ही रहमत है, कृपा है। हजूर फरमाउंदे हन कि भाई वो सारे जीआं की पालना पोषणा करता है। इत्थे सानू सिक्ख्या भी इन्ना ना फिक्रमंद होइए कि जे असीं आ प्रबंध ना कीता तो फिर पता नहीं की हो जाएगा। किरत करना साडा फर्ज है, साडी ड्यूटी है, ते उहदा फल देना, उहदा मेहनताना देना वो परमात्मा दे हत्थ है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानू अज समझा दी ये गल, कहंदे ऊंच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ। सारे जीआं दा रिजक जिहदे हत्थ विच है ना, वो सब तो उच्चा है। ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाना गुण तेरे, गावते उधरे सुनते उधरे बिन से पाप कनेरे, पशु प्रेत मोद को तारे पाण पारो तारे। वो तो एडा वड्डी समर्था वाला है, ते सारे जीआं दा रिजक उस दे हत्थ विच है। नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरा साथ। ते सानू उस परमात्मा दी शरण विच आउणा चाहिए। मानो की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसका दिया रहे गाए बौर ना तृष्णा लागे। सानू केवल परमात्मा की शरण विच, धन गुरु ग्रंथ साहब की शरण विच, गुरु की संगत विच इत्थे आके सानू नमस्कारां करनियां चाहिदियां, इत्थे आके अरदास भी करनी चाहिए। इत्थे आके अपने जी की बिरथा, अपने चित्त की पीड़ा, अपने चित्त का अपने मन का दुख सतगुरु के चरणों च आके दसना चाहिए कि बिरथा होए सुहर पै गुर पै अरदास कर। फिर भाई गुरु का सिख अरदास करे। तो सतगुरु पातशाह जी इत्थे फरमाउंदे हन, नानक प्रभ शरणागति है सतगुरु पातशाह जी असीं ते तेरी शरण विच हां, जत कत मेरे साथ। जत कत दा अर्थ है लोक परलोक विच, केवल इत्थे नहीं परलोक विच भी साडी रखिया करनों आप परमात्मा समर्थ है। इस करके सानू सदीव काल लई अपने चरणों नाल जोड़ के रखियो। सतगुरु पातशाह जी असीं जे भुल के भी भरम भुलेखे विच भी तेरे तो दूर जाइए महाराज, तो फिर आप ही अपनी कशिश खिच दे नाल सानू आप दे चरणों नाल, आपदी गुरसिੱਖੀ नाल, नाम नाल, आपदी संगत नाल जोड़ के महाराज सच्चे पातशाह जी आपदी शरणागत विच, अपनी शरण विच ही सानू कृपा करके समा के रखियो। जे गुरु के सिख नूं ये दात प्राप्त हो जावे कि मैं गुरु की शरण विच रहना है। देखो जिहड़ा दुख है सुख है ये भाई चलदी जिंदगी का एक कारज है। उतरा चढ़ा अमीरी गरीबी दुख तकलीफां ये आउंदियां रहिंदियां कि गुरु काल विच नहीं आईयां। आईयां भाई वो सानू समझाउण वास्ते सी कि भाई ये ते चलदे संसार विच ये कुछ हुंदा रहना है, पर जिथे सतगुरु पातशाही का हुक्म, गुरु का भाणा, गुरु का नाम, गुरु की संगत ते गुरु का आसरा, गुरु का भरोसा, ये गुरसिख नूं सार नहीं तो मनुख चिंता विच ही खत्म हो जाते हैं, फाहे लै लेंदे ने, खुदकशियां कर लेंदे ने।
पर सानू ये तरीका दस्या मारे नहीं भाई, गुरु की शरण विच रह के, गुरु के भाणे विच रह के, गुरु की शरण विच रह के, नाम नाल जुड़ के इथों शक्ति लैके, शक्ति का समुंदर है, सोमा है, खजाना है, इथों तो भाई रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम, गुरबाणी 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 लागे तिन हथ चढ़िया राम, गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया नरमोलक रत्न उपारा। ये तो भाई रतन सानू प्राप्त हो जाना है जे असी गुरु की बाणी नाल लग जाइए, जुड़ जाइए। सतगुरु रहमत कृपा करन। आप ही महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिन्नी की व्याख्या कराई, संगतां दे दर्शन करवाए। ये तो भाई परमात्मा का धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह का जस है, कीर्ति है, गुरबाणी की महिमा है। ये महिमा करदियां तो दास तो बेअंती गलतियां भुलां होईयां ने, गुरु की संगत ने बख्श देना। समूह दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधक जनां दा बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्हां ने बेसमझ नूं निमाणे नूं संगतां दे दर्शन करन दा ये सुभाग बख्शिश कीता है। भुलां चुकां दी खिमा बख्शिश करनी जी। ऊच पार गंत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागते जत कत मेरा साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।